Bismillahirrahmanirrahim. The fourth step of the biological problem is deduction. Okay. ये हमने पढ़ा था, तीन स्टेप्स हमने पढ़े थे। एक था रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा था ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, तीसरा था हाइपोथेसिस और आज हम चौथा पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द डिडक्शन. ओके. So dear students, what is the definition of deduction? It is the result drawn from the hypothesis by the biologist. Okay, it is the result. ये रिजल्ट जो है ये एक जो है हम इससे कंक्लूजन अखज़ करते हैं drawn from the hypothesis by the biologist. Okay, ये हाइपोथेसिस के बेस पर होती है. यानी डिडक्शन हम किस तरह बनाते हैं, डिडक्शन हम किस चीज से बनाते हैं. वी मेक द डिडक्शन फ्रॉम द हाइपोथेसिस. ओके, डिडक्शन की जो बेस होती है वो हाइपोथेसिस होती है. तो ये आपने इसकी डिफिनीशन याद रखनी है कि इट इज द रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस बाय द बायोलॉजिस्ट. देन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की आपने हेडिंग देनी है. It is a result of the logical consequences of the hypothesis. Okay, logical consequences का मतलब क्या होता है कि आप जब भी किसी चीज से लॉजिकली का मतलब क्या होता है कि आप जो है उस पर सोच करते हैं, सोच और विचार करते हैं, उसके बाद जब आप उससे कोई रिजल्ट अखज़ करते हैं, so that is a logical consequence. Okay, so deduction is a logical consequence of the hypothesis. Then we have the pattern of the deduction. Okay, how we write the deduction? It is the heading that if and then. Okay, तीसरा heading आपने देना है if and then. So it involves the use of if and then. Deduction जब भी हम लिखेंगे तो deduction को हम start में इसमें if इंट्रोड्यूस कराएंगे और दरमियान में हम then इंट्रोड्यूस कराएंगे. और इसकी सही यूज हमें किस तरह पता चलेगा, हमें एग्जाम्पल से पता चलेगा. So let's come toward its example quickly. So if all birds have wings, then pigeon is a bird. So पहले आप इसमें if और then को समझ लें. ठीक है, इसके स्टार्ट में if आया हुआ है और दरमियान में then आया हुआ है. So it is the use of if and then. Okay. So example किस तरह है, if all birds have wings, अगर तमाम परिंदों के पर हो तो पिजन जो है, कबूतर जो है वो भी एक बर्ड है क्योंकि कबूतर के भी पर होते हैं. तो द बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंट. ओके, सो लेट्स रिवाइज द नेम्स ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड. द फर्स्ट वन वाज अ रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. द सेकंड वन वाज ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च. The third one was hypothesis. The fourth one was deduction, and the fifth one, which is we are studying now, is experiment. Okay. So dear students, what is experiment? How we will define the experiment? It is that the step of biological method used to test hypothesis and verify the deduction. So this is a step of a biological method which is used to test hypothesis. Okay, we have made a hypothesis and that is tested through the experiment and to verify the deduction. Okay, the results which are drawn from the hypothesis, that are deductions. Okay, so the main purpose of experiment is to detect two things. Okay, one is to confirm the hypothesis and the second one is to confirm the deduction which are drawn from the hypothesis. Okay, so it is a step of a biological method which is used to test hypothesis and to verify the deduction. Now we have an important MCQs point according to the class 9, and that is it is a most important step of biological method. Okay, if anyone asks you or in the paper or in your classroom you are studying and your teacher asks you that what is the most important step of a biological method, so you have a straight answer that it is an experiment. Then we have its importance. Okay, why the experiment is important. Okay, so we have 2 points. If the experiment support hypothesis, अगर एक्सपेरिमेंट आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे, मतलब ये है कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है
और आप जो है जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपके एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो भी आपके हाइपोथेसिस के रिजल्ट के मुताबिक हो, फिर क्या होगा? देन फर्दर डिडक्शंस आर मेड टू चेक करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस तो आपका ठीक हो गया, लेकिन आपने क्या करना है, उसी ही हाइपोथेसिस से फर्दर आपने डिडक्शंस बनाने होंगे, ठीक है। फर्दर आपने उसमें पॉसिबिलिटीज तलाश करनी होंगी, फर्दर उसमें आपने जो है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढने होंगे, ताकि वो हाइपोथेसिस जो है वो 100% आपके पास करेक्ट आ जाए। फिर हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा डजंट सपोर्ट हाइपोथेसिस। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंट से जो एनालिसिस आई, वो आपके हाइपोथेसिस के रिजल्ट के मुताबिक नहीं है, देन न्यू हाइपोथेसिस आर मेड, ठीक है। फिर आपका वो हाइपोथेसिस जो है वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर नए हाइपोथेसिस आपने बनाने होंगे। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें एक हाइपोथेसिस को हम जो है वो या करेक्ट लेते हैं और या फिर वो इनकरेक्ट हो जाता है, और अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो हम जो है फर्दर हाइपोथेसिस। सिक्स्थ स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ओके। So the sixth step is we have the two parts of the sixth step, that is conclusion and reporting. So the first one is conclusion, okay. Conclusion को हम जो है उसको हम result भी कह सकते हैं। So how we will define it? A conclusion is drawn from the experiment by collecting and analyzing the data statistically. तो कंक्लूजन जो है ये रिजल्ट जो है ये हम अखज़ करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से by collecting and analyzing the data statistically. So what is its meaning? Okay? कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं एक हाइपोथेसिस के ऊपर, तो उस एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिजल्ट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल रिजल्ट क्या है, मेंडल ने जो था उसने पी प्लांट पर एक रिसर्च किया था, तो फॉर एग्जांपल उसको हम लेते हैं और उससे फिर जो है उससे जो कंक्लूजन उसने डिराइव की थी कि कितने प्लांट जो है वो टाल होंगे, कितने स्मॉल होंगे, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह जब एक एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट अखज़ होता है तो उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। और वो कंक्लूजन हमें किस तरह मिलता है, हम उसी ही एक्सपेरिमेंट से डेटा को जो है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकली, ओके। स्टैटिस्टिकली का मतलब ये है कि ग्राफ के तौर पर कि कितने जो है इसमें टॉल प्लांट है, कितने स्मॉल प्लांट है, अगर हम मेंडल के अलावा लें। फिर दूसरा चीज़ हमारे पास है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर लेते हो और उस रिसर्च को फिर जो है मुख्तलिफ हेल्थ के रिसालों में, उसको टीवी पर, उसको रेडियो पर, ठीक है, उसको मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स में उसको इंट्रोड्यूस कराते हो। सो द कंक्लूजन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज पब्लिश्ड इन हेल्थ जर्नल्स एंड बुक्स। तो इसको हेल्थ जर्नल्स यानी सेहत के बारे में जिन रिसालों में इंफॉर्मेशन होती है और बुक्स में, दीज आर आल्सो प्रेजेंटेड इन सेमिनार। सेमिनार्स ये होता है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के, अगर हम हाई लेवल पर बात करें, किसी डिस्कवरी के लेवल पर बात करें, तो उसमें साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट होते हैं और उस पर एक साइंटिस्ट जो होता है या बायोलॉजिस्ट जो होता है जिसने उस पर रिसर्च किया हुआ होता है, वो अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं और दूसरे उस पर क्वेश्चंस अराइज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। देन वी हैव द बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग के क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं? तो इसका पहला फायदा ये है कि इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, अब रिजल्ट तो आ गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ने भी उसको सही साबित किया हुआ है और उससे अभी रिजल्ट आ गया है, लेकिन इसका रिपोर्टिंग का फ़ायदा ये है कि ये पूरे दुनिया को पता चल जाता है, ठीक है, कि एक एक्सपेरिमेंट इस तरह हुआ है और वो सही साबित हुआ है, तो दूसरे लोग भी काम करना शुरू कर लेते हैं और उनको भी ये मौका मिलता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को सही या गलत साबित करें,
ठीक है। तो इस तरह पॉसिबिलिटी आ सकती है कि उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो एक बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई हुआ है, उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। उसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि पीपल यूज़ दिस नॉलेज टू सॉल्व अदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास अराइज हो, जिस तरह आजकल तो मॉन्की पॉक्स है, इससे पहले कोरोना वायरस था, तो उसको सॉल्व करने के लिए यही सारे स्टेप्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को मदद मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजिकल मेथड को कंप्लीट कर लिया। Biological method is a scientific method which is used by the biologists to solve a biological problem like malaria, like corona, like monkeypox, या जो भी आप ऐसी डिजीज़ को ले लें जो किसी ज़माने में एक एपिडेमिक या पेंडेमिक थी, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रही थी। इसके आपने 6 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला जो है वो है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपने पहचानना है, ठीक है। उसमें एक साइंटिस्ट क्या करता है, उसके बारे में क्वेश्चंस बनाता है। दूसरा जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशंस, जो हम अपने 5 सेंसेस से करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मेल है, टेस्ट है, हियरिंग है, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तीसरा जो है दैट इज हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर डिडक्शन है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मेड फ्रॉम द हाइपोथेसिस। इट्स फॉर्मेट इज द यूज ऑफ इफ एंड देन। उसके बाद जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड, एंड द 6th वन इज कंक्लूजन। इट इज द रिजल्ट्स, एंड द within this step there is also reporting, okay, to present this whole biological method of a respective problem to the whole world. Thank you for watching, and please press the red subscribe button and also click the bell icon. Thank you.